Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. And I hope I'm pretty audible to everyone. Yes. Walaikum assalam. You are all Uh, completely audible. Start, sir. Walaikum Assalam. okay. Thank you very much. And before I start, it would be nice if everyone would turn off the mics because then my internet bandwidth would be enough for the presentation. The mics and the cameras, if there are some cameras on, that would be good so that I can share the presentation clearly. And thank you very much for having me. I definitely am just a student myself yet. I'm a researcher in the field of robotics. It was very nice of you to have me. And thank you very much to the organizers, to the principal ma'am. It was very nice of you to introduce me the way you guys did. I hope I do as good as I'm expected and as good as you have praised me. So I should start with my presentation, but before that, I hope you guys know me. My name is Mohammed Mushtaid, and I'm myself from Kashmir, and I'm currently pursuing my PhD at University of Twente, Netherlands. And from time to time, I like to help students from Kashmir so that they, or back India, so that they can join different universities in Europe and pursue their career in upcoming fields. So for that, today's session was organized. So I would like to share my experience with you guys, how you can organize your career. And just if someone can tell me if I'm audible so that I can start the presentation. Sir, you are completely audible. Okay, thank you. Okay, so today's topic for the presentation was career awareness and avenues in the field of robotics, AI, and data science. I myself come from the field of robotics, which in itself incorporates AI because robotics and AI go hand in hand all the time. So if you guys want to know what I do and my work, you have my links for my LinkedIn, where you can check my professional work and all. And this is about me a little bit. I did my bachelor's from National Institute of Technology, Srinagar, and my internships from Japan, and my master's from France and Spain. It was a dual degree program, and currently I'm pursuing my PhD. So now about the career, like most of the time we think that we did our bachelor's in a particular field and now we can't change or we can't do what we wanted to. So maybe most of us get demotivated, like I just did a BSc in some subject I didn't want to, or I couldn't do engineering. So most of the time we get demotivated after some time that I can't do a particular thing, but it's never too late. I have friends who have done bachelor's in subjects they didn't want to, but even masters in subjects they didn't want to, but so even masters they didn't want to, but then they decide, like, it's never too late. You just have to decide I want to take a charge of my career and start taking actions. Okay. So it's never too late. Whenever you want to take a charge of your career, you can start deciding, you can start thinking, okay, I should start thinking about my career and go in a particular direction. And I hope my language is understandable to everyone. I can slow it down, or I can pace it up, or switch to Urdu if you guys want me to. Just let me know. Sorry, Ashik sir, can you let me know if the language is okay, or should I slow down or pace up? No, Mujtahid Sahab, language is okay, but if you feel comfortable with Urdu, then speak in Urdu. Because we have maximum participants as students, so that they may be benefited more. Okay, thank you. Okay, तो अगर आपने कभी भी अपना करियर शुरू करना है तो उसके लिए आपको फिर ये नहीं देखना कि मैं किस स्टेज पर हूँ. जब भी आपने करियर शुरू करना हो, आप एक स्टेप लें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें और देखें कि आप इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और
उसी हिसाब से अपना करियर डिसाइड करें। कभी लेट नहीं। आप अभी क्या, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स करते हैं, मेरे जूनियर्स जिनको मैं अपनी लैब में गाइड करता हूँ, वो 30 ईयर्स ओल्ड हैं या 35 ईयर्स ओल्ड बैचलर्स कर रहे हैं। ये सिर्फ इशू है कि आपका विल पावर कितना है और आप कितने एम्बिशियस हैं अपने करियर के बारे में। एक बार आप वो डिसाइड कर लें कि मैंने अपने करियर को अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेना है, फिर कितना भी लेट हो गया हो या कोई भी टाइम हो, आप उसको किसी भी लेवल से कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने फोकस करना है कि मैंने अपना करियर किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो और करियर का मतलब ये नहीं है कि हम कोई फैंसी सा फील्ड ले लें। मेडिसिन बहुत अच्छा फील्ड है, इंजीनियरिंग अच्छा फील्ड है, रोबोटिक्स बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन सिर्फ ये करियर्स ही नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे करियर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। करियर इन इटसेल्फ अच्छा तब होता है जब आप अपने करियर में एक्सेल करें। इवन एक कारपेंटर बहुत अच्छा करियर हो सकता है अगर आप अपने करियर में उतना एक्सेल करें कि सब आप, like if everyone starts asking about you and you are the benchmark in your profession, that's the excellence about thing। और वो चीज़ आपको सुकून देती है कि मैं जिस काम में अच्छा हूँ वो काम मैंने अपनी फुल कैपेसिटी में किया। ऐसा नहीं कि मैं जिस काम में अच्छा हूँ मैंने वो काम भी होल हार्टेडली नहीं किया, तो दैट वे आपको खुद को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। ओके, अभी फाइनली सिंस मोस्ट ऑफ यू आर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो it's natural that you guys want to assess your career and organize it in a particular direction and go to a positive direction. So for that you need to organize the career plan, like मुझे करना क्या है। सबसे पहले आपको एक इवैल्यूएशन करना है कि मैं इस वक्त कौन से लेवल पर हूँ। आप आर्ट्स में बैचलर्स कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स में बैचलर्स कर रहे हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट में बैचलर्स कर रहे हैं, आपको अपने आप को एसेस करना है कि मैंने अपने बैचलर्स या मैंने अपने जितना भी मेरा एजुकेशन है उसमें मैंने अभी तक कैसा किया, मेरा परफॉर्मेंस क्या रहा है और मेरे पास कौन सा स्किल है। मुझे प्रोग्रामिंग आती है, मुझे मैथमेटिक्स आता है, या मैं अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, मैं पेंटिंग में अच्छा हूँ, मेरा लिटरेचर स्ट्रांग है। जो भी आपका लेवल है, आपका स्किल सेट क्या है, आप अपने आप को एक बार एसेस करें कि मैं कैसा कर रहा हूँ। एक बार आप खुद का असेसमेंट ले लें, उसके बाद डिसाइड करें कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा लगता है। बहुत लोगों को लिटरेचर अच्छा लगता है, इवन आई पर्सनली लाइक लिटरेचर, बट देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट्स योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने किस चीज़ में अपना करियर परस्यू करना है, कौन सा चीज़ आप, कौन सा ऐसा काम है जो आप करेंगे और आपको ऐसा ना लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। हर वक्त काम करते वक्त आप कोई और प्रेजेंट कर रहा है साइड बाय साइड। आप ये प्रेजेंटेशन स्टॉप कर लें। Please proceed. थैंक यू। ओके, तो एक बार आपका असेसमेंट हो जाए, आप ये डिसाइड कर लें कि आपने कौन से सब्जेक्ट में जॉब करना है या आपने कौन से सब्जेक्ट में रिसर्च करना है, ताकि जो जॉब और रिसर्च है आपका वो आपको टायरसम या कम्बरसम ना लगे। वो जॉब और रिसर्च आपका आपके लिए बहुत ही ईजी होना चाहिए, क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट और रिसर्च अच्छा लगता है। तो इसी हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट डिसाइड करें, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करें और उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप एक्सीलेंस टारगेट करें। आपने एक्सीलेंस से कम टारगेट नहीं करना है, आपने ये डिसाइड करना है ये सब्जेक्ट अभी मैंने सेलेक्ट किया तो इस सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा करना है। तो उसी हिसाब से एक बार आप अपना सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करें, आप अपना टारगेट डिसाइड करें, उसके बाद आप अपना एक गोल सेट करें कि आपने करना क्या है और उस गोल की तरफ काम करें। जैसे अभी आप बैचलर्स कर रहे हैं, आप अपना गोल सेट करें कि सपोज मैंने रोबोटिक्स या एआई या डेटा साइंस में पीएचडी करना है या मास्टर्स करना है या किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना है। आप अपना टारगेट सेट करें, आप अपना गोल सेट करें कि आफ्टर 10 ईयर्स मैं यहाँ पे होना चाहिए। 10 ईयर्स लॉन्ग टर्म गोल है, आप शॉर्ट टर्म गोल सेट करें। उससे इंट्रोस्पेक्शन और री एवेल्युएशन ईजी होता है जब आप छोटे टाइम स्पैन के लिए अपना टारगेट सेट करते हैं। तो आप सेट करें कि विद इन 1 ईयर मैंने ये वाला कोर्स कंप्लीट करना है और ये सीखना है, ये वाला स्किल डेवलप करना है। तो एक बार आप अपना गोल सेट करें और उस गोल की तरफ अच्छे से सिंसियरली काम करना शुरू करें। तो एक बार आपका गोल सेट हो गया शॉर्ट टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए गोल सेट हो गया, आपने कोर्स सेलेक्ट किया कि मैं ये कोर्स सीखूंगा। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, फ्री कोर्सेज होते हैं। वंस यू जस्ट डिसाइड ऑन ए शॉर्ट टर्म गोल, वर्क टुवर्ड्स इट, आफ्टर सम टाइम इंट्रोस्पेक्ट कि मैंने वो गोल कंप्लीट किया या नहीं। फिर अपने आप को री इवेल्युएट करें, मैंने कंप्लीट किया तो अच्छा है कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। नहीं कंप्लीट किया तो चेक करें कि क्यों नहीं कंप्लीट हो पाया ये गोल मेरे से।
और उसके बाद ऐसे रिपीट करते रहे, अगला गोल सेट करें और उस गोल की तरफ काम करें, फिर इंट्रोस्पेक्ट करें, तो ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे करियर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लान करना अपना करियर, रैंडमली ऐसे कि हाँ ठीक है माँ बाप बोल रहे हैं वो करो तो उसकी तरफ जाना, दोस्त बोल रहे हैं ये करो तो इसकी तरफ जाना, बाकी दोस्त उधर जा रहे हैं तो चलो साथ में जाते हैं। अगर आप ऐसे अपने करियर को आगे ले जाएंगे तो चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट या कितने भी हार्ड वर्किंग हो, अगर आपका करियर प्लान या आपके चॉइस का नहीं है और आप उसमें एक्सेल नहीं करते हैं, फिर आपका पोटेंशियल जितना भी हो वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो जाएगा। ओके, तो अभी आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो मोस्टली रोबोटिक्स, एआई और डेटा साइंस के बारे में। बेसिक डेफिनेशन रोबोटिक्स की, कोई भी चीज़ जो हम प्रोग्राम कर सकें, जो फिर कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट कर सके, चाहे वो लेग मोशन हो या आर्म मूवमेंट हो, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट्स का होता है, जिसको हम प्रोग्राम कर सकें, जो हमारे लिए ये टास्क परफॉर्म कर सकें, उसको रोबोटिक्स बोलते हैं। रोबोटिक्स बेसिकली डॉक्टर ब्रायन डी एडम की डेफिनेशन है कि ये एक ह्यूमन इमिटेशन है। रोबोटिक्स का पर्पस है कि हम ह्यूमंस को इमिटेट करें कि कैसे ह्यूमंस टास्क परफॉर्म करता है उस चीज़ वैसे, जैसे इसलिए हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं उनको हम मैनिपुलेटर आर्म्स बोलते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन आर्म का इमिटेशन होता है। तो ऐसे हमारे पास मोबाइल रोबोटिक्स, बाइपेडल्स, ह्यूमनॉइड्स। तो ये हम एक एग्जांपल लेते हैं कि नेचर में कैसे जो नेचुरल मशीनरी है, जैसे ह्यूमंस है, एनिमल्स हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, उसी चीज़ को हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो रोबोटिक्स इन इटसेल्फ इज एन इमिटेशन ऑफ हाउ वी फंक्शन इन द नेचर। उसके बाद एआई का पहला जो बेसिक कंसेप्ट है वो है कि ह्यूमन, जो बेसिक डेफिनेशन है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करना, कि जैसे हम सोचते हैं, हम एक मशीन ऐसी डेवलप करें जो हमारी तरह कुछ हद तक सोच सके, लेकिन वो क्वेश्चनेबल है कि कॉन्शियस, कॉमन सेंस, ये चीज़ें शायद हम प्रोग्राम ना कर पाए। लेकिन अभी तक जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का, उसमें डिसीजन मेकिंग है, जो ये सब क्वालिटीज़ हैं, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब क्वालिटीज़ हम एआई में आजकल करंटली जो हॉट टॉपिक्स हैं कि दीज आर द थिंग्स दैट वी लर्न इन एआई. And then after that, data science. Now, I've been dealing with networking in my past, but since long time I didn't go in the field of networking. But for those who know networking, they know that we are switching from IP version 4 to IP version 9. So this jump from IPv4 to IPv4 to IPv6, this in itself will create a network which will give IP addresses to almost everything. Even Pebbles can have an IP address with IPv6, because this increases the range of IP addresses to huge amounts. So once IPv6 structure this is implemented, then we know that the data that would be there on the cloud and the databases, and then once IoT comes into the picture, there would be a huge abundance of data. We are already into the the age of data sciences, but still with the upcoming boom of IoT, it will be even more everywhere. Like no one could have thought that we would be using GitHub or iCloud or Google Drive long time ago, but now even those kids who don't know about these things, they eventually end up using those. iCloud, whoever uses iOS uses iCloud, people use Google Drive. These things are everywhere. So now with this much abundance of data science is everywhere. So data science is, now when you have this much amount of data, आपको चाहिए कि कोई ना कोई जो इस डेटा को हैंडल कर सके, ये डेटा को प्रोसेस कर सके। आपका गूगल में जब सर्च जाता है, वो डेटाबेस में उसको स्ट्रक्चर देना, आपके सर्च का अकॉर्डिंगली आपका रिप्लाई कैसा आता है, आपकी सर्च हिस्ट्री कौन एनालाइज करता है, कौन से एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, बेसिक सर्च एल्गोरिदम्स, ए स्टार हो, कोई भी हो, या स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिदम्स कौन से हैं, ये सब एल्गोरिदम्स डिसाइड करना और आपके डेटा को प्रोसेस करना स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस में, ये डेटा साइंस है। तो ये इस वक्त करंटली बहुत हर जगह रिक्वायर्ड है डेटा साइंस, क्योंकि हर फील्ड में डेटा का अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। Just to be sure, it's all going good. Yes, sir. Yes, sir. You are absolutely audible, and it is going absolutely good. Okay, thank you. So after this, now we got to the definition of these three fields: AI, robotics, and data science.
Now, why choose these three paths? All the careers are good. If you are in English literature, do good in English literature, excel in English literature, that's very good for you. But now if you are interested in these topics, robotics, AI, and data science, why should you choose robotics? Because like if you have studied psychology, if you have studied any other subject, and now you think, I like robots, should I go for this career? Yes, you can go for this career, because there are very few universities which teach graduate courses or bachelors in robotics. So अगर आपने बैचलर्स किसी भी सब्जेक्ट में किया है और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे रोबोटिक्स लेना चाहिए, नहीं, तो आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बैचलर्स मास्टर्स ज्वाइन करते हैं रोबोटिक्स में या अपना करियर परस्यू करते हैं रोबोटिक्स में, वो सब किसी अलग फील्ड से आए होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो। रोबोटिक्स क्योंकि एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, तो इसमें हर साइड से स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो रोबोटिक्स की स्ट्रेंथ इसी चीज़ से आती है कि इसमें हर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें मैकेनिकल वाले भी हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं और कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं, तो इस वजह से ये फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा रोबोटिक्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। लाइक दीज आर द रीजन व्हाई यू शुड चूज रोबोटिक्स, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई डिड माय मास्टर्स, आई डिडंट हैव टू वेट। like while doing my master thesis, I already started working for a company, and even internships you can do in industrial companies and start working from there. So even like when COVID happened, people started losing jobs, but robotics is an industry where it's very stable. And in COVID also, in pandemics also, robotics industry rather was more in demand, because it's a pandemic situation. People don't want to deal with people. People would prefer dealing with robots so that they don't catch the infection or stuff. So these are the technologies. That's the reason we are moving towards these things, so that we don't stagnate where we are. Like previously there were jobs which don't exist now. So if अगर हम कहीं पे करियर में हैं, तो हमको वहीं पे अटकना नहीं है, हमको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना है। अभी आप कुछ कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद शायद ये चीज़ ना रहे, टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं। तो हम ये चीज़ें AI, रोबोटिक्स, डेटा साइंस इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अभी ये फ्यूचर है, अभी ये चीज़ें स्टडी की जाएंगी। अभी तक टैक्सी ड्राइविंग एक जॉब था, अभी ऑटोनोमस व्हीकल्स आ जाएंगे, ऑटोनोमस टैक्सीज आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग जॉब लूज करेंगे, ठीक है, जॉब सिर्फ रिप्लेस होते हैं। जो पहले टैक्सी चलाते थे वो अभी ऑनलाइन हैंडल करेंगे आपका टैक्सी कंसल्टेंसी, वो बस घर बैठे कंप्यूटर से आप टैक्सीज का आपका लोकेशन वगैरह हैंडल करेंगे, वंस ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड ऑल। तो जॉब रिप्लेस नहीं होता है, तो आपको सिर्फ अपना स्किल हमेशा अपडेट करते रहना होता है कि मैं अभी ये सीख रहा हूँ, तो मुझे अपना स्किल अपडेट करना है, ये नया आ रहा है तो मैं ये सीखूंगा। तो in view of these things, robotics, AI, and data science are the things that are in market and that are the hot topics of the current market. So you need to learn these skills and start a career in these fields, because they are currently growing in the world. Okay, so now about the subjects, like मैं बोल रहा था कि not necessarily आपने engineering किया हो या आपने computer science पढ़ा हो या mathematics पढ़ा हो। रोबोटिक्स ऐसा फील्ड है जिसमें हर किस्म के लोग आ सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत बड़े साइंटिस्ट्स हैं, जो प्रोफेसर ऑडी बिलार्ड है, ये टॉप विमेन साइंटिस्ट, टॉप 20 विमेन रोबोटिसिस्ट्स में से एक हैं। तो ये फिजिक्स के बैकग्राउंड से थे। ऐसे ही इनके साथ वो स्कोला सेंटाना, ये इटली की एक यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर ऑडी बिलार्ड EPFL स्विट्जरलैंड लॉज़ान में एक सिटी है, वहाँ से हैं। तो ये लोग फिजिक्स से थे। ऐसे कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी, लाइक कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी कुछ हद तक ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स और कॉग्निटिव साइंस कुछ हद तक रोबोटिक्स का ही एक सब्जेक्ट है। तो इससे भी फील्ड्स हैं, इससे भी बहुत सारे लोग हैं जो रोबोटिक्स में स्विच कर चुके हैं। इवन हमारे कश्मीर से एक हैं डॉक्टर एजाज, वो कॉग्निटिव साइंसेज और कॉग्निटिव साइंस रोबोटिक्स वाले फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। वो UK यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में काम कर रहे थे अभी तक। तो ऐसे ही इसके अलावा सोशियोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी, क्योंकि रोबोटिक्स सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने रोबोट बनाना है, रोबोट बनाने के बाद आपने उसको मार्केट में बेचना भी है। तो मार्केट में बेचने के लिए आपको लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए कि सपोज अगर मैं अभी बोलता हूँ कि हम गाड़ी रिलीज करें जो बिना ड्राइवर की चलती है, या ऐसी टैक्सी है जो ऑटोनॉमस है जो बिना ड्राइवर की चल रही है,
सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम उसको लॉन्च करें, उसके अलावा लोगों का एक्सेप्टेंस क्या है उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए आपको सोशल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं किसी पैसेंजर को बोलूँ बिना ड्राइवर के गाड़ी में बैठ जाओ, he should be able to accept this thing. He shouldn't freak out like if I sit in a vehicle where there is no driver and it's driving on its own, it will take like मैं रोबोटिक्स पढ़ता हूँ, मुझे टाइम लगेगा इस चीज़ को हैंडल करने में कि अगर मेरे साथ गाड़ी में ड्राइवर नहीं है और गाड़ी खुद चल रही है। तो मेरे लिए भी इसका एक मेंटल एक्सेप्टेंस के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए, इन पर रिसर्च करने के लिए सोशल साइकोलॉजी वाले, सोशियोलॉजी वाले, सोशल साइंसेज वाले लोग भी रोबोटिक्स में रिसर्च करते हैं। और उसके बाद श्योरली मैथमेटिक्स का रोबोटिक्स में हर जगह एप्लीकेशन है। आप मैकेनिक्स करें, किनेमैटिक्स करें, रोबोटिक्स की इनवर्स किनेमैटिक्स, जो भी आपके ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये मैथमेटिक्स हैंडल करता है। तो इसके अलावा लॉ, अभी लॉ का रोबोटिक्स के साथ क्या रिलेशन है? लाइक एक बार आपके ऑटोनोमस व्हीकल्स, क्योंकि मेरे रिसर्च के बहुत रिलेटेड है तो मैं इसीलिए एनालिसिस जो भी है वो ऑटोनोमस व्हीकल्स के रिलेटेड देता हूँ। तो सपोज आपके पास ऑटोनोमस ड्राइविंग कार है, तो वो रोड पे चल रहा है। एक बार ये कार रोड पे चल रहा है, अभी ये कार ने एक्सीडेंट किया, तो आप ब्लेम किसको करेंगे? व्हीकल को, सॉफ्टवेयर डेवलपर को, या कंपनी को, या जो रोड पे क्रॉस कर रहा था उसकी गलती? तो रोबोटिक्स के लॉज भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। या जैसे इंडस्ट्री में आपका रोबोटिक आर्म है, रोबोटिक आर्म ने किसी को हिट किया या कोई उस वजह से इंजोर हुआ, तो गलती किसकी थी? वर्कर की थी या इंडस्ट्री जिन्होंने रोबोट खरीदा या जिसने रोबोट बनाया? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉ स्टूडेंट्स रोबोटिक्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप किसी भी फील्ड से हो, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोफेसर राज रेड्डी ट्यूरिंग अवार्ड विनर है, ट्यूरिंग अवार्ड रोबोटिक्स का टॉप अवार्ड है, सिविल इंजीनियर थे। तो आप किसी भी फील्ड से हो, इवन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से लोग हैं जो स्विच करते हैं, क्योंकि वो लोग बट इट्स देयर, दे नो समथिंग अबाउट दीस थिंग्स, दे नो अ लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स, दे नो अ लिटिल बिट ऑफ प्रोग्रामिंग, एंड वो सीखने के लिए तैयार होते हैं। बट द पॉइंट इज दैट if you are from any field right now but you are interested in the field of robotics, you just have to have that willpower and you just have to decide that I want to do this and I'm ready to learn the skills कि मुझे सीखना है, मैं कोशिश करूंगा ये सब सीखने के लिए। तो अभी रोबोटिक्स के लिए शुरू कैसे करना है? बहुत सिंपल है। बाकी फील्ड्स में बहुत सिंपल है। आपने डॉक्टर बनना है, आपने MBBS करना है, आपने मेडिसिन स्टडी करना है, आपने पुल बनाने अच्छे लगते हैं, बिल्डिंग्स अच्छा लगता है, PWD में जॉब करना है, सिविल इंजीनियरिंग। अब अगर आपने रोबोटिक्स करना है, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। आपने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, इवन बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोमेडिकल रोबोटिक्स एक बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि सर्जिकल रोबोटिक्स एक बहुत अपकमिंग फील्ड है जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आपने कुछ भी पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, आप किसी भी फील्ड से अभी हो, आप रोबोटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं रोबोटिक्स की तरफ जंप इन करने में। तो आपका बेस प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, आप रोबोटिक्स आए और आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, मैं ओपन हूँ बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप में वो ओपननेस और वो फ्लेक्सिबिलिटी है तो रोबोटिक्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अभी रोबोटिक्स में कौन से कोर पार्ट्स हैं, कोर स्किल्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं? जो बॉडी का पार्ट है, जो मैकेनिकल पार्ट है। जो मैकेनिकल पार्ट है इसमें आप ऑब्वियसली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, उनको एज मिलता है। मटेरियल साइंसेज वाले के रोबोट किस मटेरियल का बनेगा, रोबोट की बॉडी किस मटेरियल की बनेगी। फिजिक्स वाले जिन्होंने मैकेनिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स या बाकी उससे आगे की थर्मोडायनेमिक्स वगैरह जो भी फिजिक्स है डिज़ाइन और मैकेनिक्स के रिलेटेड, वो आप इसमें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स ऑब्वियसली हर जगह रिक्वायर्ड होता है। और मैन्युफैक्चरिंग वाले, उसके बाद नर्वस सिस्टम, जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरिंग सेटअप, वो सब है एक रोबोट का, वो आपका अलग एक टॉपिक आता है। उसके बाद जो ब्रेन है, जिस AI ब्रेन है आपके रोबोट का, उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझते हैं, इमेज प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है। लेकिन वहाँ पे साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज वाले भी इस ब्रेन में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, या कॉग्निटिव साइंसेज वाले, क्योंकि फाइनली आपने डिसाइड करना है कि रोबोट के साथ मैं कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आप एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा ह्यूमंस के साथ रोबोट कैसे इंटरेक्ट कर सकता है वो एक साइकोलॉजी वाला समझ सकता है, क्योंकि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा समझता है।
तो अगर एक साइकोलॉजी वाला रोबोटिक प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड करता है तो वो एक रिसर्च का पर्सपेक्टिव ये भी रख सकता है कि हमने रोबोट को अप्रोच कैसे करना है ताकि वो ह्यूमंस के साथ अच्छे से ह्यूमन एनवायरनमेंट में मिक्सअप हो सके। और उसके अलावा लॉ, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और मैनेजमेंट, ये ऑब्वियसली ये फील्ड्स हर जगह रोबोटिक्स चूज कर सकते हैं। अभी अब अगर आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है मैं जहाँ पे भी हूँ मैंने अपना एक असेसमेंट लिया है तो मुझे शुरू करना है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, बेस कि मैं थोड़ा बहुत ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे like if you want something where to see what I'm getting myself into, कि मैं किस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करने जा रहा हूँ, आपको वो बेसिक आइडिया चाहिए। तो ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अच्छा ऑप्शन होता है हमेशा। मैंने भी देखा है कि हम कश्मीर से जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, वरना हमारे पास कोर्सेरा में फाइनेंशियल एड अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए। So you can use this option and at any time you can start doing courses online. So these are the links for courses you can start with. NPTEL is very famous, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी कोई ऑनलाइन कोर्स का अपना वेबसाइट है, I don't remember the name but it's very good there. But other than that, Coursera and edX are very good for online courses. ये कुछ कोर्सेज हैं जहाँ से आपको रोबोटिक्स का आइडिया हो सकता है कि मैंने क्या सीखना होगा रोबोटिक्स समझने के लिए। ये तीनों कोर्सेज बिगनर्स के लिए हैं। ये लिंक्स हैं, आप इन लिंक्स पे क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। तो मैंने प्रेजेंटेशन शेयर किया हुआ है, इंशाल्लाह वो जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। तो इन लिंक्स पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने रोबोटिक्स में आगे जाने के लिए आपने क्या क्या सीखना है। तो सॉरी, just to make sure it's going good. It's absolutely going good. Okay, thank you. Okay, so ये लिंक्स है जो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या सीखना पड़ेगा, आपकी लेवल कहाँ पर है अभी और आपने कितना टाइम लगेगा मास्टर्स ज्वाइन करने के लिए या रिसर्च करने के लिए। तो हमेशा हम लोग इतना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, हद से ज़्यादा टाइम बाकी चीज़ों में। अगर आपका टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है उसके लिए आप ऑनलाइन थोड़ा टाइम स्पेंड कर ही सकते हैं और आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी या नहीं। एक कोर्स के बाद आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में रिसर्च करनी है या नहीं, क्योंकि करियर आपका सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं है, करियर फिर आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड करता है कि आपकी जो अभी के बाद ज़िंदगी जाने वाली है वो किस फील्ड में होगी, आप पूरी ज़िंदगी क्या कर रहे होगे। पूरी ज़िंदगी अपने जॉब के बारे में रो रहे होगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही कितनी भी सैलरी अच्छी हो या जो भी आपका पोजीशन अच्छा हो, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको रोज अनोइंग लोग फेस करने हैं या आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप अपने काम में कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आप लोग अनोय होते रहेंगे। तो इसलिए अभी से डिसाइड कर लें कि आपने करना क्या है। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज देख लें, ये रोबोटिक्स के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप कोर्स चेक कर लें और चेक करने के बाद आपको पता चल ही जाएगा थोड़े टाइम बाद कि हाँ ठीक है ये चीज़ मुझे इंटरेस्ट कर रहा है, मैं रोबोटिक्स में सर्जिकल रोबोटिक्स मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स अच्छे लगते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स अच्छे लगते हैं, डिजास्टर रोबोट्स अच्छे लगते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा चीज़ मुझे अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काम कर सकता हूँ। तो ये आप लिंक्स चेक कर लें, आप देख लें कि आपने कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, थोड़े बहुत कोर्सेज कर लें, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लें, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है। उसके बाद ये रोबोटिक्स, इसके बाद एआई और डेटा साइंस। रोबोटिक्स और एआई हमेशा हैंड इन हैंड जाते हैं। एज एन एआई का बहुत सारा यूज़ है रोबोटिक्स के फील्ड में, एआई के बहुत सारे यूज रोबोटिक्स के आउटसाइड भी हैं, और ऐसे डेटा साइंस भी, डेटा साइंस का बहुत सारा यूज़ है रोबोटिक्स के फील्ड में और डेटा साइंस बहुत वास्ट है आउटसाइड रोबोटिक्स भी। तो अभी हमको एआई और डेटा साइंस के फील्ड्स क्यों चूज करनी चाहिए। सबसे पहले एआई के बारे में बात करें। अभी जितना भी वर्ल्ड में हमारी जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, मतलब जो करंट ट्रेंड्स को ब्रेक कर रही हैं, अभी तक जो हमारे ट्रेंड्स थे, अभी तक जितने भी जॉब्स थे, नॉर्मल कंप्यूटर साइंस, वेब डिजाइनिंग में जॉब्स थे या ऐसी चीज़ों में जॉब्स थे जो बहुत ही बेसिक के जॉब्स थे या ऐप डेवलपमेंट की जॉब्स थे, अभी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं हमारे साथ। अभी बिग डेटा आ रहा है, आपका सारा कुछ क्लाउड में हैंडल हो रहा है, IBM उसमें जंप कर रहा है, फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर्स हैं या डेटा साइंस के टूल्स हैं, हडूप है, जो भी है, ब्लॉकचेन आ गया, अब आपकी करेंसी से पेपर करेंसी नहीं रही, क्रेडिट कार्ड्स से भी आगे हम लोग बढ़ गए, अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है,
क्रिप्टो करेंसी, इस सब के लिए आपको ब्लॉकचेन एल्गोरिथम्स का थोड़ा बहुत साइंस पता होना चाहिए, और ऑब्वियसली रोबोटिक्स भी है आपके पास। तो अभी जब हमारे पास ये नई ट्रेंड ब्रेकिंग जो फील्ड्स हैं या जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, इन सबको हैंडल करने के लिए आप रेगुलर जो हमारे पास साइंसेज हैं, रेगुलर जो एल्गोरिथम्स हैं, उन पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब इतने फास्ट हैं कि अगर आप हर चीज़ खुद से डिसाइड करें और आपका सिस्टम जो है वो चीज़ें खुद ना सीख सके, खुद ना लर्न कर सके, और उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ ना हो और उसमें लर्निंग एबिलिटीज़ ना हो, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए बाकी फील्ड्स को कोप करने के लिए भी आपको एआई सीखना बहुत ज़रूरी है। एक सिंस मैं रोबोटिक्स से हूँ, तो मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ कि अगर आपने हर बार और सपोज रोबोट को कोई चीज़ इंडस्ट्री में कोई चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, फ्लिप करना है या ग्रास्प करना है, कोई चीज़ डिटेक्ट करना है, अगर आपको हर बार रोबोट को ये सिखाना पड़े कि चीज़ XYZ कोऑर्डिनेट पे है, 3D स्पेस में हमारे पास पोजीशन होता है XYZ कोऑर्डिनेट, अगर आपको हर बार सिखाना पड़े रोबोट को कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है जो मुझे ग्रास्प कर रहा है वो XYZ कोऑर्डिनेट पे है, तो आपने हर बार वो नया पॉइंट सिखाना पड़ेगा, ग्रास्प कब करना है वो सिखाना पड़ेगा, ये सब। इंस्टेड अगर आप उसमें एआई इनकॉर्पोरेट करें, एक कैमरा लगा दें, कैमरा जाके ऑब्जेक्ट खुद से डिटेक्ट करेगा, लर्न करेगा कि यही मेरा ऑब्जेक्ट है, जाके ग्रास्प करेगा, फिर अच्छे से उस ऑब्जेक्ट पे अच्छे ग्रास्प कौन से हैं, गुड ग्रास्प, बैड ग्रास्प डिटेक्ट करेगा, ग्रास्प करने के बाद इंश्योर करेगा कि ऑब्जेक्ट ग्रास्प हुआ है या नहीं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको नई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज को और ज़्यादा अपग्रेड करना है और उनमें अपना बेंचमार्क सेट करना है, तो आपको एआई ज़रूरी सीखना पड़ेगा। और उसके बाद ऑब्वियसली फंडिंग, जो भी फंडिंग आ रही है नई रिसर्च के लिए, वो एआई में बहुत ज़्यादा फंडिंग है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं सब एआई के लिए फंड कर रहे हैं, जितनी भी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो एआई में अपना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एआई में। अभी मुझे नहीं पता आप लोग ब्लैक मिरर या वेस्ट वर्ल्ड साईफाई मूवीज कितने लोग देखते हैं। मैं मूवीज प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कितने लोगों को अवेयरनेस है कि ऐसी चीज़ें, वेस्ट वर्ल्ड या टर्मिनेटर, इस किस्म की चीज़ों का। तो ऐसे एक और साईफाई मूवी थी, वेस्ट वर्ल्ड उसका नाम था, जिसमें वो सॉरी, साइड बाय साइड समवन एल्स इज प्रेजेंटिंग, कैन यू स्टॉप दिस? Okay, thank you. 1 second, sir. I will remove him. Okay, he has been removed. Okay, thank you. Okay, so ऐसे एक मूवी था वेस्ट वर्ल्ड उसका नाम था, जिसमें लोग जिसमें लोग वो एक वेस्ट वर्ल्ड पार्क में जाते हैं रोबोट्स और या ऑटोमेशन से उनके साथ बात करने जाते हैं, तो एंड पे फाइनली वही टर्मिनेटर की तरह रोबोट्स पागल हो जाते हैं और सब वो सब। तो ये सब चीज़ें जो हमारे पास वो साईफाइज और फिक्शंस हमारे दिमाग में, ये चीज़ें भी एआई को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, तो क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है। एआई के बहुत सारे लेवल्स हैं। सिंपल जो सिर्फ डिसीजन मेकिंग करता है, जैसे चेस का सॉफ्टवेयर है, चेस प्लेइंग सॉफ्टवेयर, आईबीएम ने बनाया था चेस प्लेइंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद सॉफ्टवेयर हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं और थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत परसेप्शन भी है उनमें, जो डिटेक्ट कर सकते हैं सामने ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे चैट बॉट्स हैं। जैसे आप लोग बैंकिंग एप्स होते हैं हमारे पास आजकल, तो जैसे एमपे है शायद कश्मीर में, नॉट श्योर, तो उस पर आप टेक्स्ट करते हैं उनको चैट बॉक्स में, तो एक ऑटोनोमस रिप्लाई जनरेट होता है चैट बॉट्स के जरिए। तो ऐसा एआई का यूज़ है। एजीवीज हैं, मतलब ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल्स, जो डिटेक्ट करते हैं कि सामने कौन सी चीज़ है, मुझे क्या करना चाहिए, इस मामले में डिसीजन मेकिंग है। फिर उसके बाद पेपर आईकब, ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं जो आपके इमोशंस डिटेक्ट करते हैं और आपके बाद आप उनसे क्या कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली ये सोशल रोबोटिक्स जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं ऑटिज्म वगैरह के, उनके लिए यूज़ होते हैं। तो इसके आगे फिर आते हैं सेल्फ अवेयर और सुपर इंटेलिजेंट रोबोट्स या सेंटिएंट बीइंग्स, जो मूवीज में हमको, साईफाइज में हमको दिखाया जाता है कि एक बार रोबोट्स ऐसे आएंगे कि वो ह्यूमंस को फिर कॉन्कर करेंगे। जब आप एआई समझेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो आपको सब ये डाउट्स और ये कंफ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएंगे कि ये सब कैसे, सब विद इन ह्यूमन कंट्रोल्स, कैसे सब अंडरस्टूड साइंस है, कैसे ये ऐसा साइंस नहीं है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और उसके बाद डेटा साइंस, ऑब्वियसली ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आप लोगों को कि डेटा साइंस इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वंस
things with IoT start moving ahead and IPv6 becomes more frequent in use, then there would be data almost everywhere. Once there's data everywhere, you will have to learn data. Previously, हमारे पास sorry, someone else is. Okay. So previously हमारे पास जो फ्यूल था वो सब पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन इस सब पे चलता था. अभी वो भी रिप्लेस हो रहा है क्योंकि पेट्रोल इवेंचुअली फॉरएवर रहने वाला है नहीं, तो इवेंचुअली अभी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज वो सब यूज हो रहे हैं. लेकिन डेटा अब एक चीज ऐसा चीज है जो हर चीज को फ्यूल करता है. आपने गाड़ी चलानी है, आपके गाड़ी के लिए आपका जीपीएस डेटा पर बेस्ड है. अगर आपका गाड़ी ऑटोनोमस व्हीकल है वो डेटा बेस्ड है. आपका क्रूज कंट्रोल है गाड़ी का, वो डेटा बेस्ड है. आपके घर में एसी चल रहा है वो आईओटी से लिंक्ड है, वो डेटा बेस्ड है. आपका सब कुछ नेटफ्लिक्स से लेके, केबल से लेके, गूगल सर्च से लेके, आपका सोशल मीडिया जिसपे हम अपना मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हर कुछ डेटा पर बेस्ड है. तो डेटा साइंस अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा इन डिमांड है. उसके बाद प्रॉब्लम है कि डिमांड और सप्लाई का जो रेशो है, डेटा साइंस इतना ज़्यादा है कि उतने साइंटिस्ट्स ही नहीं है डेटा साइंस के, जो लोग जिन्होंने डेटा साइंस पढ़ा हुआ है. अभी कंपनीज नॉर्मल स्टूडेंट्स को हायर करके उनको ट्रेन कर दिया डेटा साइंस में, क्योंकि डेटा साइंस उतना ज़्यादा इन डिमांड है. अभी जितने भी लोग क्राइसिस में जा रहे हैं, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, एआई, ये लोग क्राइसिस में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हैं कि प्रॉब्लम्स के बावजूद हमको कैसे आगे बढ़ना है. और इन फील्ड्स में ऑलरेडी लोग कम हैं. इन फील्ड्स में आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं. ऑब्वियसली जब लोग ऑलरेडी अवेलेबल कम है तो आपको करियर में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, और उसके अलावा ऑब्वियसली आप बड़े लाइक यू कैन मेक ह्यूज इम्पैक्ट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट आर नाउ गोइंग टू मेक इम्पैक्ट इन द सोसाइटीज दैट वी लिव इन. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी भी कन्वेंशनल साइंस से लेके कोई बड़ा इम्पैक्ट करता हूँ, पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, लेकिन चांसेस बहुत कम है. लेकिन अभी लाइक फेसबुक एक एप्लीकेशन एक यंग एंटरप्रेन्योर शुरू करता है, इतना बड़ा इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे है उसका. अभी उन्होंने ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब लॉन्च किया. तो डेटा साइंस और ये सब फील्ड्स में एक बार आप इन चीज़ों को समझ सकें तो आप बहुत बड़ी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट्स अभी के करंट हॉट ट्रेंड्स हैं और फ्यूचर में भी हमको यही नज़र आएंगे. ओके, लाइक हमने देखा कि रोबोटिक्स कौन लोग स्टडी कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि एआई और डेटा साइंस कौन लोग स्टडी कर सकते हैं. सिमिलरली लाइक रोबोटिक्स, एआई सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले लोग नहीं देख सकते. ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हमको डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग ये वर्ड्स हम सुनते हैं, हमको लगता है हाँ ठीक है इसमें प्रोग्रामिंग करना है तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले लोग ही कर सकते हैं. नहीं, नॉट नेसेसरी. इफ यू आर फ्रॉम ए फील्ड अदर देन कंप्यूटर साइंस यू कैन ऑल्सो, क्योंकि एआई में एट द एंड ऑफ द डे आपको कंप्यूटर को सिखाना है कि आप कोई चीज़ कैसे लर्न करो. जैसे हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स को सिखाते हैं ह्यूमन गेट एज इन द स्टाइल ऑफ वॉकिंग, ह्यूमन गेट रिकॉग्निशन आप कैसे करते हैं, या बायोमेट्रिक स्कैन्स कैसे लेने हैं, या आइरिस स्कैन्स उससे कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, इमेज रिकॉग्निशन कैसे करना है. तो ये सब के लिए ऑब्वियसली आपने प्रोग्रामिंग आना चाहिए, क्योंकि एआई में आपने इंटरैक्ट कंप्यूटर से करना है. तो कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज आपकी प्रोग्रामिंग है. प्रोग्रामिंग को आप एज ए स्किल कम और एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा समझे. अभी प्रोग्रामिंग हमारे लिए स्किल नहीं रहा. अभी हम उस एज में हैं जहाँ पर हमारे लिए प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज बन गया है कि अगर हमने इस जनरेशन में सर्वाइव करना है, हमने एक और लैंग्वेज सीखनी है ताकि हम कंप्यूटर से बात कर सकें. तो उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं. तो फिर वो पाइथन हो जो भी हो, उनमें बहुत कम डिफरेंस होता है. एक बार आप प्रोग्रामिंग का एसेंस समझ पाएँ, फिर आपने सिंटैक्स कोई भी चूज करें वो सेकेंडरी इशू है. तो नॉट नेसेसरी कि आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से, आप किसी और फील्ड से भी हो सकते हैं. जैसे फॉरेंसिक साइंस वाले इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं कि हमने बायोमेट्रिक स्कैन्स में क्या जज करना है और हम क्या देख रहे हैं और हम कौन सी चीज़ को बायोमेट्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं कंप्यूटर को ये समझाने में. और लर्निंग एल्गोरिदम्स जो भी हमारे बन रहे हैं, कि हम लर्निंग एल्गोरिदम्स बना रहे हैं कि आपने ये कंप्यूटर ने ये सीखना है, ये चीज़ डिटेक्ट करना है, उसके लिए जो भी हमारे डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो कैसे बिहेव करने चाहिए, उनमें
एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बायोमेट्रिक एल्गोरिदम्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। या सपोज एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो रिसर्च कर रहा है कि हमने कैसे चेक करना है, उसको पता है कि like he knows what he wants to see or what's the point that he is looking for, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा सर्च करेगा कि हाँ ठीक है, मैंने इस चीज़ का स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो वो 3D रिकंस्ट्रक्शन या ऐसे रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम्स में जो AI आता है उनको ज़्यादा बेटर प्रोग्राम कर सकता है अगर उसको प्रोग्रामिंग आता हो। ऐसे इंग्लिश लिटरेचर वाले लिंग्विस्टिक एप्लीकेशंस जो हैं AI के, उनमें ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो इन जनरल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट, एज इन नॉट नेसेसरी कंप्यूटर साइंस वाले, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है अंडरस्टैंड करना, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है। तो उसके लिए अलग फील्ड से लोग आके अगर प्रोग्रामिंग सीख लें और शुरू कर लें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना, वो लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे और उतना मुश्किल नहीं है कंप्यूटर साइंस। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर नो अ लिटिल बिट अबाउट कंप्यूटर साइंस। तो आप लोगों ने न्यूरल नेटवर्क्स का नाम सुना होगा। तो जब हम न्यूरल नेटवर्क्स ऑन द फेस वैल्यू लेते हैं तो हमको लगता है वो बहुत बड़ी चीज़ होगी न्यूरल नेटवर्क्स, लेकिन एक हमारे पास बहुत सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स में एक एग्जांपल होती है, उसको हम MNIST डेटा सेट बोलते हैं, जो नंबर रिकॉग्निशन के लिए यूज़ होता है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 28x28। अगर ये कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, बस एक एग्जाम्पल है। तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 28x28 और उस मैट्रिक्स में हमारा एक पिक्सलेटेड नंबर है। तो वो नंबर को डिटेक्ट करने के लिए हम बस एक इन 28x28 जो 700 समथिंग उसका मल्टीप्लाई बनता है 746 जो ये पिक्सल्स हैं, इनको अलग अलग लेयर्स, सपोज हम सिर्फ 2 लेयर्स ले लें तो इन लेयर्स में वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा एंड रिजल्ट आ जाता है हमारे आउटर न्यूरॉन नेटवर्क लेयर पे। तो बस एक बैक प्रोपगेशन कॉस्ट फंक्शन बीच में एक लगाना होता है। तो ये बस एक एग्जांपल है, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, भूल जाए। तो न्यूरल नेटवर्क्स जो हमको ऑन फेस वैल्यू इतना बहुत बड़ा लगता है, वो भी एट द बैक एंड उतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डीप लर्निंग में, आप इस सब्जेक्ट को कभी भी आगे ले जा सकते हैं। और उसके बाद डेटा साइंस आपका आता है। डेटा साइंस के लिए कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत ज़रूरी हैं कि आपने कंप्यूटर साइंस एज इन प्रोग्रामिंग पता होना चाहिए, फिजिकल साइंसेज और स्टैटिस्टिक्स। डेटा साइंस में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डेटा एनालाइज करें तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग से आप अवेयर होने चाहिए, इंजीनियरिंग और अकॉर्डिंग अगर आपने डेटा साइंस में शुरू होना है तो बिग डेटा, हडूप, ये सब आपने आगे देखना है। अभी ऑनलाइन कोर्सेज, सॉरी वो AI और डेटा साइंस का हेडिंग इंटरचेंज हो गया है, लेकिन आपने पता चल ही जाएगा टाइटल से कोर्सेज के। ये कुछ कोर्सेज हैं जहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, कि मैंने कौन सा कोर्स लेना है, मैं आगे इसको परस्यू कर पाऊंगा या नहीं, मैं इसको सीखूंगा या नहीं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप चेक कर सकते हैं। ये डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन जनरल कोर्स है, बहुत बेसिक से शुरू होता है। फिर डेटा साइंस विद पाइथन, मोस्टली मुझे नहीं पता क्या परसेंटेज है, लेकिन बहुत सारे लोग डेटा साइंस को R लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है पाइथन बहुत अच्छा लैंग्वेज है। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो पाइथन ऑलमोस्ट हर जगह है, डेटा साइंस में है, मशीन लर्निंग में है, इमेज प्रोसेसिंग में है, वेब डिज़ाइनिंग में है, रोबोटिक्स में है। तो पाइथन एक बहुत वाइड लैंग्वेज है। ऑब्वियसली सी प्रोग्रामिंग बेस लेवल पर सबको सीखना होता है, क्योंकि वो आपको मशीन लेवल पर एक्सेस देता है, लेकिन वो चीज़ें मोस्टली की हुई हैं। तो अभी आपने हायर लेवल पे अगर प्रोग्रामिंग करना है, नई चीज़ें सीखनी है, तो पाइथन आपके लिए बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है और पाइथन लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। तो डेटा साइंस विद पाइथन एक ऑप्शन है आपके पास, और IBM का अपना डेटा साइंस का फुल कोर्स है। उसके बाद AI में मेरा बहुत फेवरेट कोर्स है, जो टाइम टू टाइम में दोबारा से देखता रहता हूँ। ये प्रोफेसर एंड्रयू एंग है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, करंटली शायद कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छे प्रोफेसर है, इनका कोर्स है। पॉइंट ये है कि आप इन कोर्सेज को एक बार देख लें, ये फ्री होते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए तब वो कुछ चार्ज करते हैं, नॉट नेसेसरी। आप एनरोल फ्री कर सकते हैं, ऑडिट फ्री कर सकते हैं और कोर्स कर सकते हैं। आपने कोर्सेरा का सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, आपने कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इवन उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ ने एक ऑप्शन रखा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल एड के लिए लिख सकते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एड दे देते हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट भी फ्री में मिलेगा।
एज इन आप घर में बैठ के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT और मिशिगन यूनिवर्सिटी और यूपेन की सर्टिफिकेट ले सकते हैं एक अच्छे कोर्स में। इससे अच्छा ऑप्शन करंटली, अगर आप सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप इतने अच्छे यूजेस के लिए भी इंटरनेट को और इस सब को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अब आपने मैंने शुरू में बोला था कि आपने अपना करियर डिसाइड करना है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। एक बार आपने करियर डिसाइड कर लिया, सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि अब मैंने क्या करना है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि मैंने कंपनी में जॉब करना है, रिसर्च करना है, PhD करना है, रिसर्चर बनना है, टीचिंग करनी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है, या जो भी आपका अपना करियर गोल आपने सेलेक्ट करना है एक बार आपने सब्जेक्ट डिसाइड किया। तो जो भी आपका डिसीजन हो, इंडिया में क्योंकि एवेन्यूज कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो नेचुरल है। हमारा इंडिया में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, स्कॉलरशिप्स बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, इकोनॉमी हमारा बहुत वीक है, उतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है, तो हम नए फील्ड्स में ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बहुत अच्छी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है, या जो भी IIT अच्छे वाले हैं वहाँ आप रिसर्च कर सकते हैं, IISc है, सॉरी, तो इन जगहों पे आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो आप लोगों के पास है वो है वेस्टर्न कंट्रीज, जिनकी इकोनॉमी स्टेबल है और जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत कम है। तो अगर आप यूरोप या US में मास्टर्स करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, चाहे फिर आप जॉब करना चाहें या रिसर्च करना चाहें। अभी यूरोप और US में डिफरेंस क्या है, US का एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा है। लाइक 2 साल का आपको मास्टर्स के लिए $200,000, वो 1 करोड़ इंडियन रुपीज़ या 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ हो जाता है, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल सी चीज़ है। मे भी कुछ लोग अफोर्ड कर पाएँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉसिबल सी चीज़ है US का एजुकेशन सिस्टम अफोर्ड करना। एक्सेप्ट कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है या जो भी है, लेकिन स्टिल USA बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, USA में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, सिलिकॉन वैली है, नासा है, SpaceX है, टेस्ला है। तो ऑब्वियसली कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, कंट्री पावरफुल है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे लिए एक्सपेंसिव है। लेकिन कंपैरेटिवली यूरोप हमारे लिए, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में फ्री हैं, चीप है बहुत ज़्यादा, यूरोप बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। यूरोप में भी JPL के बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, ABB, जो भी सारी रोबोटिक्स की बड़ी कंपनीज, तो आपके पास यूरोप में ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, चीपर ऑप्शन भी है। क्योंकि आप देखें, अगर आप अच्छे से एप्लीकेशन करें, अच्छे से अपना CV प्रिपेयर करें, अच्छे से सही एग्जाम्स दें, तो आपको यूरोप में अच्छा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है और आप अच्छी जगह एडमिशन भी ले सकते हैं। अभी अप्लाई करते वक्त आप जब अप्लाई करें तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में कंसिडर करना ज़रूरी है। यूरोप और USA को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है कंपेयर टू एशियन यूनिवर्सिटीज़। सिंगापुर में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाइना में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जापान में बहुत अच्छा रिसर्च होता है, कोरिया में बहुत अच्छा रिसर्च होता है। लेकिन इनके कंपैरिजन में यूरोप और USA में काम करने से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। आप इंग्लिश में रिसर्च करते हैं, आपका पहले ही एरिया इंक्रीज होता है। और यूरोप और USA में कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी इधर बहुत कम है वेस्ट में। तो आपके जितना, अगर आप इन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपका अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इंक्रीज हो जाता है। और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ कंसिडर करें कि अगर आप जर्मनी में कंसिडर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जर्मन सीख लें, थोड़ा बहुत फ्रेंच सीख लें। अगर आप फ्रांस में कर रहे हैं या कनाडा में कर रहे हैं तो ये चीज़ें, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का थोड़ा ख्याल रखना है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इंग्लिश अगर आपको आती है तो TOEFL एक टेस्ट होता है, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे स्कॉलरशिप को टारगेट करें तो GRE एक एग्ज़ाम होता है। आप इंशाल्लाह, if anyone has some questions about these things you can ask later. तो TOEFL, GRE ये एग्जाम्स आप चेक कर सकते हैं। और यूजुअली हम यूनिवर्सिटी के रैंकिंग चेक करते हैं अप्लाई करते वक्त कि ये यूनिवर्सिटी का QS रैंकिंग बहुत अच्छा है तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूँ। यूनिवर्सिटी के रैंकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ आप अप्लाई करें उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। QS रैंकिंग्स में IISc बेंगलोर का भी रैंक बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर आप IISc बेंगलोर या IIT बॉम्बे से काम करते हैं तो इंडिया में उसके बावजूद फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक सेटअप ऐसा है। तो अगर आप उसके कंपैरिजन में जर्मनी में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो जर्मनी का इकोनॉमिक सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे यूरोप में अगर आपने कंपेयर करना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज इटली में जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है और जर्मनी में रैंकिंग कम है, या नॉर्वे में या स्वीडन में रैंकिंग कम है, लेकिन इटली के ऊपर आप या स्पेन के ऊपर आप प्रेसिडेंस देंगे जर्मनी, नॉर्वे और इन कंट्रीज को, क्योंकि इनका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। और आपका प्रोग्राम का चॉइस जो है वो ये होना चाहिए कि मुझे कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है, रादर देन प्रोग्राम कितना फैंसी हो। दिखने में मैकेट्रॉनिक्स ऐसा है, ये सब बहुत फैंसी वर्ड्स हैं, लेकिन आपको ये प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता है तो आप प्रेफर करें कि आप वो प्रोग्राम चूज करें जो आपको अच्छा लगता है। तो फैंसी नेम्स के बजाय अपनी चॉइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये देखें कि कौन सी जगह आपको फेलोशिप पूरा मिल रहा है। आप फुल फेलोशिप को प्रेफरेंस दें ओवर कंपेयर टू लाइक जहाँ आपको खुद पे करना पड़े। Okay, so now these are some countries you should consider when applying. Like these are the countries which are very good for education. Economy is good, language barrier won't be that big an issue, and also like you have much opportunities for jobs and they have very good universities. First of all, Germany. Economy stable, international acceptance बहुत अच्छा है। Germany में international community बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, और प्रोग्राम्स इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारे हैं। और जर्मनी का एक बहुत अच्छा फीचर है, वहाँ सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री होती हैं, कोई फीस नहीं होता है। तो उसके अलावा जर्मनी तो वैसे खैर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑप्ट कर रहे हैं, जर्मनी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं कश्मीर से अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अलावा नॉर्डिक कंट्रीज़ में स्वीडन है, नॉर्वे है या फिनलैंड है, ये कंट्रीज़ को बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, वरना इन कंट्रीज का पॉपुलेशन बहुत कम है, इनमें यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, KTH टॉप यूनिवर्सिटीज में है ये वर्ल्ड के, तो स्वीडन में। तो इन कंट्रीज को बहुत कम लोग चूज करते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज को। अदरवाइज वहाँ पोजीशंस बहुत अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, तो आपने नॉर्डिक कंट्रीज को कंसिडर करना चाहिए अप्लाई करते वक्त। और उसके अलावा जब आप अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखें कि आपको जर्मन या फ्रेंच दो में से एक लैंग्वेज, नॉट नेसेसरी कि आप लोग सीखें, मुझे कोई भी नहीं आता, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का टॉफल दिया था सिर्फ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जर्मनी में किसी अच्छे स्कूल में जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ाता तो थोड़ा बहुत जर्मन सीख लें, जैसे RWTH आखिन है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ जो अच्छे कोर्सेज हैं वो जर्मन में हैं कुछ, तो आप लोग जर्मन, और जर्मन सिर्फ जर्मनी में नहीं बोली जाती, जर्मन ऑस्ट्रिया में भी बोली जाती है, स्विट्जरलैंड का कुछ रीजन है वहाँ भी बोली जाती है। वैसे ही फ्रेंच है, फ्रेंच एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप फ्रेंच सिर्फ फ्रांस में नहीं बोली जाती, फ्रेंच फ्रांस में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड का कुछ रीजन और कनाडा, तो ये दो लैंग्वेज आपके ऑप्शंस और इंक्रीज कर देते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, बट नॉट नेसेसरी। इवन आई माई सेल्फ डोंट नो एनी ऑफ दीज टू लैंग्वेज, आई नो अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेंच बट नॉट दैट गुड। तो उसके बाद अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो पर्सनली मुझे यूनिवर्सिटीज़ अच्छी लगती हैं, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ कश्मीरी अप्लाई करना चाहिए। TU म्यूनिक में हैं माशाल्लाह बहुत सारे कश्मीरी हैं, या बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे साउथ एशियंस हैं जो लोग TU म्यूनिक में अप्लाई करते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो हैं, TU डार्मस्टाट है या बाकी जो जगह हैं जर्मनी में, उधर बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इन यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, ये सब लिंक्स हैं, आप लोग इसके बाद इन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद नेदरलैंड्स में, मैं करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे में नेदरलैंड्स में हूँ, TU डेल्फ्ट है या यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन है, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोप की, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिया में TU ग्राज, TU वियन, ये दो बहुत अच्छी ऑप्शन है जो बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि TU ग्राज और TU वियन इंटरनेशनल एक्सपोजर को अभी बहुत कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद बेल्जियम है, बेल्जियम में आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं होगा, बेल्जियम यूरोपियन कैपिटल है तो वहाँ इंग्लिश इजीली बोली जाती है। और कीव बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी भी है, इसका रैंकिंग भी बहुत अच्छा है। उसके बाद फ्रांस में इकोल सेंट्रल पेरिस है और बाकी इकोल सेंट्रल भी हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, UPC बार्सिलोना है, KTH स्वीडन है, ETH ज्यूरिक वर्ल्ड की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में है, EPFL लॉजान है, और इसी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक भी है स्विट्जरलैंड में, जहाँ से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़ा है। तो और हमारे कश्मीर से भी एक है उधर फिजिक्स डिपार्टमेंट में, एज इन वो आइंस्टाइन के ही
लैब में थे, तो एज इन बहुत सारे ऑप्शन हैं अगर आप कंसिडर करना चाहें। IIT जेनोवा इटली में डॉक्टर एजाज जिनकी मैं बात कर रहा था जो कॉग्निटिव रोबोटिक्स में, वो IIT जेनोवा से थे। NTNU नॉर्वे है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जिन यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है, तो श्योरली मैं इन यूनिवर्सिटीज़ को रेकमेंड करूँगा। मैंने मास्टर्स किया था इकोल सेंट्रल फ्रांस से, उसके बाद मैंने रिसर्च अपना मास्टर थीसिस किया था यूनिवर्सिटी ऑफ जोमेप्री में स्पेन से, इंटर्नशिप किया था टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक से, और अभी अपना PhD कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे से। तो ये यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको फुल स्कॉलरशिप मिलता है, आपको मंथली सैलरी मिलेगा, एक तो कोई फीस नहीं भरना है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, आपको वीज़ा मिलेगा, ट्रैवल एक्सपेंडिचर मिलेगा, और उसके अलावा आपको मंथली एक सैलरी मिलेगा करंट रेट के हिसाब से 85,000 यूरोज, सॉरी 85,000 इंडियन रुपीस, वो यूरोपियन इक्विवेलेंट में बनता है 1000 यूरोज। तो एक तो आपका फी भी मिलेगा और आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, और उसके अलावा आपको सैलरी मिल रहा है 85,000 इंडियन रुपीस। वो बहुत लाइफ आपकी इजी बनाएगा मास्टर्स के दौरान। उसके बाद डार्ट के स्कॉलरशिप्स हैं, ये सिर्फ जर्मनी में। इरास्मस मुंडस के जो स्कॉलरशिप्स हैं ये अच्छे इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक जगह नहीं पढ़ते, इसमें आप, जैसे मेरा जो प्रोग्राम था वो फर्स्ट ईयर फ्रांस में था, फिर मैंने इंटर्नशिप जर्मनी में किया, फिर मैंने सेकेंड ईयर स्पेन में किया, फिर मैं थीसिस कहीं और भी कर सकता था लेकिन मैंने थीसिस स्पेन में ही किया। तो ऐसे आप इरास्मस मुंडस के जो प्रोग्राम्स है वो आपको बहुत सारी कंट्रीज देखने का ऑप्शन देते हैं। उसके बाद डार्ट के स्कॉलरशिप्स हैं जो जर्मनी में होते हैं। उसके बाद फ्रांस के लिए स्पेसिफिक हैं कैंपस फ्रांस स्कॉलरशिप्स जिसमें चारपाक है, आईफल है, और उसके बाद इरास्मस के मोबिलिटी स्कॉलरशिप्स हैं। अगर कोई इंडिया में करंटली मास्टर्स अपना कर रहा है या इंडिया में स्टडी कर रहा है, अब उसको फाइनल सेमेस्टर है, थीसिस करना है, तो वो इरास्मस मोबिलिटी स्कॉलरशिप के थ्रू यूरोप आके उसको स्टाइपेंड मिल सकता है और वो यूरोप में अपना इंटर्नशिप कर सकता है। उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग स्कॉलरशिप होता है जो आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर लेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, और इसके अलावा फिर आपने देखना है कि आपने टॉफल का एग्जाम देना है, GRE देना है, तो ऐसे आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ गाइडेंस है जो मैंने आपको बोलना था, लाइक विच यू कैन कीप इन कंसिडरेशन। सो दिस इज लाइक by now, which I think should be very helpful for you guys. So I hope this was very helpful, and you can ask me anything you want. Thank you very much. Thank you, Mujtahid Saab, for this beautiful talk. Now I request participants, if they have any question, they can post that in chat window. We have many students here. They may be wishing to go abroad for studies in robotics with the help of scholarships. If you have any question, post it in chat box. Mujtahid Saab will directly pick up the questions from the chat box. Okay. So the first one was regarding undergraduate courses and the second one was regarding the scholarships. So about undergraduate courses, there are, I hope I'm audible, right? You're audible, Mujtahid Saab, you're audible completely. Okay. So the first question was about undergraduate courses and the second one was about scholarships. For undergraduate courses, there are many options for undergraduate courses also. So you can apply for undergraduate courses, but for mostly you can start doing undergraduate courses in India because it's easy, it gives you ease of option, you're close to home, and these things help you. आप उस लेवल पे थोड़ा स्टेबिलिटी आपको चाहिए, थोड़ा फोकस करने के लिए और थोड़ा डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बैचलर्स के एज में यूरोप आ रहे हैं शायद थोड़ा आपको गाइडेंस की ज़रूरत लगे, क्योंकि बैचलर्स के एज में आप बहुत यंग होते हैं, तो आपको यूरोप आने में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा बहुत कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। लेकिन श्योरली आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी। अब जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ के लिंक रखे हैं इसमें, आप उन यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स पे जाएं, वहाँ इंटरनेशनल एक सेक्शन होता है, आप इंटरनेशनल सेक्शन में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज चेक कर सकते हैं।
अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स भी होती हैं आपके लिए। यूएस में अगर आपने अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स चाहिए तो आपने सैट का एक एग्ज़ाम होता है, आपने सैट देना पड़ता है। वैसे GRE इक्विवेलेंट है, लैंग्वेज टेस्ट टॉफल का बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉफल या आइल्स ये 2 एग्जाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको देने ही देने। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं तो आप सैट कंसिडर कर लें साथ में एक ऑप्शन देने का, और अगर आप मास्टर्स लेवल पे बाहर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग GRE कंसिडर कर लें देने के लिए। स्कॉलरशिप के बारे में, स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के साथ ही कंसिडर होता है। मैंने लिंक्स, जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसमें लिंक्स भी, होपफुली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर लेंगे जिस वाया ईमेल जहाँ से उन्होंने आपके साथ लिंक शेयर किया था। Absolutely. After the completion of session, we will email PPT, which has been already shown by you, to each जी। participant. जी, तो उस PPT में आपके पास लिंक्स हैं स्कॉलरशिप्स के, जैसे इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप है, आप उस लिंक पे क्लिक करें तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा कि आपने क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए। तो अपना स्कॉलरशिप में अब आपने अपना CV बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है स्कॉलरशिप के लिए। अपने टीचर्स के साथ और डिस्कस करें जो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देंगे, अच्छी इंटर्नशिप करें टाइम बाय टाइम, और ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करें। ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करते हैं वो आपका CV बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप कोर्सेरा से ऑलरेडी आपने कोर्स किया हुआ है और आपका फाइनेंशियल एड के अंडर आपका यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट भी आपको मिला है, तो सपोज आपके पास MIT या यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया या ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का, स्टैनफोर्ड का ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑलरेडी अवेलेबल है कोर्सेज के थ्रू, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपके पास स्किल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। इवन अगर आपके पास ऑब्वियसली परसेंटेज कंसिडर होती है, लेकिन अगर आपके पास परसेंटेज कम भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन अगर आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 65% होता है अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए, इवन 60% वाले भी कभी कभी एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो हालांकि हमको लगता है कि सिर्फ 90% वाले एक्सेप्ट होते हैं। ऑब्वियसली बहुत एज मिलता है परसेंटेज का भी, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने मेहनत किया 90% लाए उनको श्योरली उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं अच्छा कर रहे थे लेकिन अभी आप करियर को सीरियस ले रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत टाइम देना है, आपको कोर्सेज कर रहे हैं, आपके कम परसेंटेज को कंपनसेट करने के लिए आपके पास कोर्सेज एक्स्ट्रा होने चाहिए। आप GRE दे सकते हैं, आपका GRE स्कोर अच्छा है तो वो इजीली आपके बैचलर्स के परसेंटेज को कवर कर सकता है। GRE स्कोर के बाद आप कोर्सेज कर लें, ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेरा पे माइक्रो मास्टर्स होते हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, उनमें स्कोर अच्छा लाएं और अच्छी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है तो आपका जो कम स्कोर ग्रेजुएशन में आया था वो इजीली कवर होता है और आपको अच्छा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अच्छा बनाना है, कोर्सेज कलेक्ट करने हैं, CV स्ट्रॉन्ग करना है, और जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पे आप लोग इजीली स्कॉलरशिप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पे भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं। तो और ऐसे ही कुछ फेसबुक पे पेज हैं हमारे, कश्मीर गाइडेंस हैं हमारे, कुछ फ्रेंड जो सीनियर्स हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर दाऊद हैं, उन्होंने वो एक ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए रखा है जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कौन सा स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ऐसे डॉक्टर एजाज ने, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका एक ऑनलाइन फेसबुक पेज है जहाँ से आप देख सकते हैं कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ अगर आप देखना चाहें कि स्कॉलरशिप्स कहाँ क्या अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगा। आप फेसबुक पे टाइम वेस्ट करने के बजाय अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप्स का वहाँ से पता चल सकता है। तो उसके अलावा किसी ने पूछा है व्हाट स्कॉलरशिप्स टू कंसीडर इफ यू आर प्लानिंग टू परस्यू मास्टर्स इन स्टैनफोर्ड एंड कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाएगा तब भी US बहुत एक्सपेंसिव है। स्टिल ऐसा नहीं है, आपको बहुत अच्छा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं US में रहना तो आप इजीली वहाँ आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। फुल ब्राइट एक ऑप्शन है आपका, और हेनरी नाइट स्कॉलरशिप है शायद, HK स्कॉलरशिप है हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के लिए, वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी है एक्चुअली। तो HK स्कॉलरशिप आप वो कंसिडर, हेनरी नाइट या हार्वर्ड नाइट, मुझे अच्छे से नाम पता नहीं है, तो वो एक स्कॉलरशिप है जो स्टैनफोर्ड के लिए है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फुल ब्राइट यूजुअली इंडियन स्टूडेंट्स जो US जाना चाहते हैं उनके लिए फुल ब्राइट बहुत अच्छा ऑप्शन है। और वो HK स्कॉलरशिप का फुल फॉर्म क्या, वो आप खुद चेक कर लें गूगल से, या इन केस यू कैन ईमेल मी, my email ID is there, you can I can let you know sometime later।
तो वो एक स्कॉलरशिप स्टैनफोर्ड के लिए है। तो ये चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं, और आप यूनिवर्सिटी को खुद से यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे उनके इंटरनेट, एक चीज़ बहुत अच्छा होता है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, उनका इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस बहुत स्ट्रांग होता है। आप उनको ईमेल लिखें, आप उनसे क्वेश्चंस पूछें, वो आपको इजीली आंसर देंगे। एक नहीं 10 ईमेल लिखें, वो 10 ईमेल का रिप्लाई करेंगे। उनका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है कंपेयर टू साउथ एशियन वर्क कल्चर। हमारे साउथ एशिया में एक्चुअली वर्क कल्चर बुरा इसलिए भी है क्योंकि हमारा वर्क फोर्स कम है। तो आप लोग इजीली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मैं कौन सा स्कॉलरशिप ले सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस क्या है। आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट खोलें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आपने थोड़ा टाइम देना है इस चीज़ के लिए, ये आपके करियर का इशू है। थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा टाइम दें, चेक करें कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी दे रहा है, कौन सा स्कॉलरशिप कंट्री दे रहा है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। कुछ लिंक्स मेरे पीपीटी में भी है, और कुछ लिंक्स आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे भी मिलेंगे, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हैं। ओके, robotics and artificial future. So employment consent, sure. हाँ, robotics और AI का जॉब, AI का तो खैर आपको हर जगह मिल जाएगा। AI आप इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं क्योंकि AI ऑनलाइन होता है सब कुछ, और AI का इंडिया में भी बहुत स्कोप है, और डेटा साइंस का भी इंडिया में बहुत स्कोप है क्योंकि बेंगलोर में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस हैं। तो और नाउ दिल्ली, गुड़गांव, AI और डेटा साइंस इज लाइक एवरीवेयर। रोबोटिक्स का, हाँ, इंडियन इकोनॉमी रोबोटिक्स सस्टेन नहीं कर सकती। आप इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स महंगे होते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल रिसर्च महंगा होता है। रिसर्च हो रहा है लेकिन यूरोप के कंपैरिजन में बहुत कम है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी उतनी स्टेबल नहीं है। तो इंडिया में लेबर बहुत सस्ता है, उनको रोबोट की ज़रूरत है क्योंकि अगर आपको लेबर बहुत सस्ता मिल रहा है। वेस्ट में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि लेबर को भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। यहाँ जो हाउस जॉब करते हैं, जो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या कारपेंटर्स हैं, वो भी 1000 यूरोज, 1200 यूरोज, करीब 1 लाख का मंथली सैलरी उनका भी होता है। तो यहाँ इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ लेबर महंगा है, तो इसलिए यहाँ रोबोटिक्स अच्छा फील्ड है और रोबोटिक्स का स्कोप बहुत है। लेकिन इंडिया में AI और डेटा साइंस का बहुत स्कोप है। ओके, वो फिर से किसी ने टर्मिनेटर वाला क्वेश्चन पूछा है। एक बार आप AI पढ़ लें, डेटा साइंस पढ़ लें और डीप लर्निंग पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि वो सब सिर्फ मूवीज में ही होता है। ये बहुत ही अंडरस्टूड साइंस है, कोई ऐसा नहीं। ओके, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके, केमिस्ट्री से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से। डेफिनेटली आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करें, और उसके बाद आप अगर आप प्रोग्रामिंग सीख लें, शायद केमिस्ट्री बैकग्राउंड था, केमिस्ट्री हो, इवन साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, किसी भी बैकग्राउंड से, हिस्ट्री बैकग्राउंड से, आप अगर किसी ऐसे बैकग्राउंड से जो रिलेटेड नहीं हो तो आप ऑनलाइन कोर्स पहले प्रोग्रामिंग पे कर लें। पाइथन के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, वो आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, जैसे अल्फ़ाबेट सिखाते हैं लैंग्वेज में, ABC, वैसे ही प्रोग्रामिंग आप ABC से सीखेंगे। हेलो वर्ल्ड मतलब प्रोग्राम होता है हमारा, प्रोग्रामिंग में पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड होता है। वो मतलब, उसका मतलब ही होता है कि हम प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड को हेलो बोल रहे हैं। तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग से शुरू कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, इंग्लिश बैकग्राउंड से, साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, जहाँ से भी हैं, आप लोग प्रोग्रामिंग से शुरू करें। once you are done with programming, then you can do a micro masters program online. थोड़ा बहुत माइक्रो मास्टर्स प्रोग्राम ऑनलाइन चेक कर लें, और फिर आप लोग रोबोटिक्स और डेटा साइंस में आ सकते हैं। अगर आपने इन फील्ड्स में नहीं आना है, अगर आपने केमिस्ट्री में ही यूरोप आना है, आपके केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। केमिस्ट्री में भी फिर आप जब आप यूरोप आएंगे आपको पता चलेगा कि वो केमिस्ट्री, सिविल, इंग्लिश, हर चीज़ में प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। क्योंकि ये मैं बोल चुका हूँ, प्रोग्रामिंग अब हमारे पास स्किल नहीं है, प्रोग्रामिंग अब एक लैंग्वेज बन गई है। क्योंकि अब जनरेशन में कंप्यूटर के साथ बात करना हमारी कंपल्सरी चीज़ बन गई। तो कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, और इजी है, उतना मुश्किल नहीं है प्रोग्रामिंग सीखना। अगर आपको ना भी आता है, केमिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी जगह हैं, केमिस्ट्री, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इवन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जहाँ मैं PhD कर रहा हूँ,
यहाँ का सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी बहुत अच्छा फील्ड है, आप लोग साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में अप्लाई कर सकते हैं, या केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम पुणे and want to pursue TU Munich or Stanford. Okay, not necessarily TU Munich. Obviously आप Erasmus Mundus वेबसाइट खोलेंगे, जो मैंने लिंक दिया हुआ है वही जो मैंने लिंक स्कॉलरशिप्स के दिए हुए हैं, उनमें आपको हर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स सब कुछ मिल जाएगा। आप यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स पर क्लिक करें, आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स मिलेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कॉन्टैक्ट्स में जाएं, इंटरनेशनल ऑफिस में जाएं, इंटरनेशनल ऑफिस का ईमेल दिया होगा, उनको ईमेल लिख के सब कुछ पूछें, वो आपको सब कुछ बोलेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है, वेबसाइट्स चेक करनी है, वो आपको सब बोल देंगे। ओके, हाउ डू यू कंपेयर वैली स्टूडेंट्स टू द वेस्ट विद रिगार्ड टू प्रोफेशनल? हमारा वर्क कल्चर बहुत बुरा है वैली स्टूडेंट्स में, हम लोग बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है हमारे अप्रोच में अंटिल वी आर देयर। हाँ, हमें बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं कंपेयर, जब यहाँ आते हैं यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा पोटेंशियल बुरा नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट्स कश्मीर से हैं बहुत अच्छी जगहों पे हैं। मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ, जैसे बड़गाम से हमारे कुछ दोस्त हैं, वो इस वक्त उन्होंने PhD किया था रोबोटिक्स में ऑक्सफोर्ड से, ETH ज्यूरिख से में शायद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत सारे हैं, स्टैनफोर्ड में हैं कुछ, UK में हैं कुछ, कुछ कंपनीज हैं US में जो कश्मीरियों की हैं, जो फोर्ब्स 30 अंडर 30 में, NIT से हैं कुछ लोग उसमें। तो ऐसा नहीं है कि हम कश्मीर में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन हमारा प्रोफेशनल एटिकेट जो है वो सही नहीं है। अगर हम थोड़ा बहुत प्रोफेशनल हो जाएं अपने अप्रोच के लिए, डिसऑनेस्ट ना रहें चीज़ों के लिए, तो श्योर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैन यू प्लीज सजेस्ट एनी यूट्यूब चैनल? लिंक्स में मेरा यूट्यूब चैनल है, वो देख सकते हैं। और एक बहुत अच्छा रोबोटिसिस्ट है जिसको मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ, लुई की रोबोटिक्स, उसका लिंक इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है, जो बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल रोबोटिक्स के टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स वीडियोस बनाता है। मैं आई कैन रिप्लाई और आई कैन सेंड, लाइक यू कैन स्पीक टू मी लेटर। ओके, I'm currently pursuing MTech Embedded Sciences Systems from Kashmir University. Should net to be able to do PhD in India or should I? आपने इंडिया में PhD करना है या फॉरेन में, वो आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में और आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको PhD में अच्छा रिसर्च करवा सकती है, तो आप श्योरली नेट देके इंडिया में PhD कर सकते हैं। और अगर आपको ऑप्शन चाहिए यूरोप में या US में, PhD के लिए US भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि PhD जॉब कंसिडर होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो आपको सैलरी मिलता है, फुल टाइम रिसर्चर सैलरी मिलता है और अच्छा खासा सैलरी मिलता है। जैसे नेदरलैंड्स में आपको एवरेज जो सैलरी है वो 2600 यूरोज है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.4 लाख पर मंथ बनता है इंडियन रुपीज में। 2.4 लाख एक स्टूडेंट के लिए PhD के दौरान मंथ में, एक महीने में 2.5 लाख रुपए बहुत होता है एक स्टूडेंट के लिए। फ्रांस में थोड़ा कम है, फ्रांस में आपको शायद 1.5 लाख मिलेगा, जर्मनी में भी शायद आपको 1.5 लाख मिलेगा, स्पेन में 1 लाख, लेकिन अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है आपको PhD में। अगर आप PhD यूरोप में करना चाहते हैं या स्विट्जरलैंड में, आपको इवन 2.8 लाख तक मिलता है, नेदरलैंड्स में 2.5, स्विट्जरलैंड में 2.8। तो आप चेक कर सकते हैं, किसी कंट्री में शायद और भी ज़्यादा हो। US में भी आपको सैलरी मिलता है PhD के लिए। तो PhD के लिए मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन यूरोप और US बनता है, क्योंकि आपको सैलरी अच्छा मिलता है और रिसर्च के लिए इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में अगर आप रिसर्च करें, तो अगर आप रिसर्च ऐसे फील्ड में करें जिसमें आपको बड़े एवेन्यूज नहीं चाहिए, तो हाँ श्योरली इंडिया में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रोबोटिक्स में करना है या ऐसी चीज़ में करना है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए, तो उस लेवल की फंडिंग आपको यूरोप में ईजीली मिल सकती है। तो फॉर दैट यू कैन कंसिडर मूविंग टू वेस्टर्न कंट्रीज। और उसके लिए आप लैंग्वेज के लिए टॉफल दें और GRE दे सकते हैं, लेकिन GRE कंपल्सरी नहीं है। टॉफल दें, कुछ कोर्सेज करें, आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। योर यूट्यूब चैनल नेम एंड Gmail ID। ईमेल ID भी मेरा PPT में, यूट्यूब का लिंक भी है, लिंक्डइन भी है, आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब का नाम है मुजतहिद, मेरा नाम है, तो यूट्यूब का नाम भी मुजतहिद रोबोटिसिस्ट स्टोरीज है, आपको मिल जाएगा।
So I think that's enough. I hope that's enough. Thank you, Mujtahid Saab. Is there